Assalamualaikum. Can you hear my voice, children? Farheen and Ghulam Muhyiddin. Assalamualaikum. Can you hear me clearly? Yes, good. Ghulam Muhyiddin, how are you? Farheen Beta, Farheen Shams, how are you? I don't know what is the reason behind why students not over here yet. Hopefully, within some minutes, we are going to start properly. What you got to do? Yes, no, beta. I cannot listen. I'm just going to talk. You people are going to listen. If you want to communicate with me, then you have to write down the messages, and then I will read and I will reply verbally. मेरी आवाज आपको आएगी, लेकिन आपकी आवाज मुझ तक नहीं आती. We are communicating through one way. I am verbally, and you are by writing, right? Alhamdulillah. Why people are not here yet? Because this is what I just do not enjoy and like. People should be on time, they should be very regular, punctual. In order to get distinction, we require proper decorum of the classroom. Alhamdulillah, Alhamdulillah, I'm fine. But better after, how are you, ma'am? You better put what? A comma, a full stop, or a Ghulam mention. How are you, ma'am? Do you put a full stop or a comma or a question mark? Shabash. I think we better start. It's like 2-7. Shabash. This is what I wanted. So this question mark is all the time crying. Do you know why crying? Please, people, do not forget me. You forget and you get negative marking, and question mark cries. इसलिए आपके पंक्चुएशन मार्क्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना. Okay, I'm going to start. First of all, we should know what is lingua franca. Have I told you previously what is actually lingua franca? That day during orientation, मैंने आपको बताया था lingua franca क्या होता है? If not, then come on. Okay. Actually, beta, lingua franca is a language through which people communicate, those who belong to different native areas. I repeat, it's a language which is used by people who belong to different native areas. For example, if we are going to communicate in English, English is the lingua franca. जैसे आप कराची वाले हैं, वो सिंधी समझते हैं, गुलाम मोहिउद्दीन हैं, वो सराइकी समझेंगे, कोई उर्दू समझेगा, कोई पख्तूनख्वा वाले पश्तो समझेंगे, लेकिन हम जिस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेंगे दैट इज गोइंग टू बी इंग्लिश, ठीक है, और उर्दू. तो जो लैंग्वेज, द लैंग्वेज इज स्पोकन बाय पीपल हैविंग डिफरेंट लैंग्वेज, जिनकी माँ बोली और होती है, लेकिन वो बात किसी एक जबान में कर रहे होते हैं, जैसे चाइनीज होते हैं तो वी जस्ट टॉक इन इंग्लिश, टू सम एक्सटेंट वी कैन कम्युनिकेट. ये हो गया. तो बेटा इंग्लिश जो हमने फंक्शनल इंग्लिश करनी है, दैट इज नॉट ओनली फॉर एएफसी लेवल. रिमेंबर वन थिंग फर्स्ट. अगर आपके ज़हन में हो कि जी बस एएफसी पास करना और बस इंग्लिश पढ़ के खत्म करना है काम, तो दिस इज नॉट सच. फंक्शनल इंग्लिश गोइंग टू हेल्प यू थ्रू आउट योर CA career, not academically, even after your academics in professional life. So what we got to do, we have to be very careful. I'm going to write down a sentence on the board. What you have to do, try to read. I usually start, this is what I have told you, I do not start from the topmost, I usually start from the lowest bottom. Ground, basement 1 से नहीं, basement 2, बल्कि 3, 4 बहुत नीचे से शुरू करते हैं. So I'm going to write down a sentence and you are going to let me know what is it, what is inside the sentence. Okay? Come on, let's start. Can you hear my voice clearly? If there's going to be any issue, just mention and then we will clear. So, I'm going to start. My mother is baking a cake
quickly. Come on, just a small little sentence. What is at the end? It's a full stop. Come on. Now, beta, please tell me what have I written on the board. How you're going to let me know? Look over here. I'll give you a hint. For example, you're going to let me know what is mother, then is bacon, a cake, and quickly, and the last punctuation mark used. Come on, mention one by typing, then I'll let you know and I'll check it out. What is our future plan? Ji beta, come on, let's start. I'm waiting for your answers. Be quick. Ghulam Mohyuddin? What? Sorry, Sahin? What? Didn't you understand? Why sorry, Farheen? Okay, my mother is subject, yes. Farheen, what do you say? Yes, it is subject, you're right. Why are you afraid? Don't be afraid. Like this, you are going to answer the way Ghulam Mohyuddin is answering. It's a simple sentence. I didn't get it. You just have to tell me what is inside the sentence. Then I'll tell you what else. Ghulam Mohyuddin is solving quickly. Farheen, come on. Ghulam Mohyuddin, please don't answer. The next Farheen is going to let me know what is quickly, Farheen. What is quickly? Farheen, what is quickly, beta? What do we call? Yes, the present condition. Quickly is an adverb. Right. Right. So why were you afraid? Your answer is 100% correct. Quickly is an adverb. Right? Yes, correct, beta. You're right. And what is at the end of the sentence? It's the full stop. Come on, let's start the game now. Beta, actually we are going to know what is inside the sentence. I know you can write down long, lengthy essays, but here we are not going to write down anything. We are just going to find out what is inside the sentence. This is like structure of the sentence, how to structure. What should be the sequence? So my mother, he said, is the subject, 100% correct. Right, it's the subject. Nobody told what is it. Yes, you said it's continuous, but here we are going to see it's like auxiliary verb. And this is like main verb. Is an article. I'm sorry. And this cake is a noun. And when we are going to take it as a whole, it will become an object. An object. Quickly is an adverb. Sorry. Just a minute. So what have I done? I have written different parts on the board. Actually, these are the parts of speech. What is a speech? Speech is a sentence. What is a sentence? Have you got your registers and pens with you? Okay, fine. Do you have your registers with you? Ji beta. Write on today's date at the top of your register. Write on introductory lecture. Write on introductory lecture and write on this sentence. Then break it into different parts. Come on, start doing. You got to write down. Right? Maybe they are on your quarters, but you have to do with your fingers, so by the end you'll be comfortable.
G. Done. Now I'll speak another sentence. You're going to break it by yourself. I won't give you the answers. You're going to do it by yourself. G, write down. Are you ready? Come on, start writing. My younger brother is going to school in a very slow manner. I repeat, my younger brother is going to school in a very slow manner. Let's start working. Done? Have you written? Okay. G beta, now start breaking. The way I have done, underline my. What is my? Farheen, now you're going to tell me. My is my. This is like I, this is my, this is me. Okay, but you got to tell what is my. Pronoun. Younger is an adjective. Are you working? Brother is a noun. Is again auxiliary or helping verb. Going is main verb. But why am I telling you? You got to do it by yourself. Come on, children, do it. First of all, solve it. And if you will solve, then write down done, and I'll start checking. गुलाम मोहिउद्दीन, अगर आप इसको कर लें तो फिर डन लिख दीजिएगा, तो मैं आपको बोल के बताऊंगी कि ये इसमें क्या क्या चीजें। My younger brother is going to school in a very slow manner. Done. Come on, be quick, children. No problem. How could you be sure? We haven't started yet. This is just an introductory class for Insham. Beta, जो नहीं आता, just leave the blank. I will try to help you. I just want to check you that do you know what is inside the sentence? यही हमारा functional English है. This is quite different than the language and the subject English you people have been studying for the last 12 years. ये थोड़ी सी मुख्तलिफ तरीके से हमने करना है, but it's not difficult. Ghulam Mohiuddin, have you done? Just try to solve it. चले मैं आपके साथ करती हूँ. कीजिए. हमने किया था my younger brother तक. Okay, not yet, no problem. अब मैं बोलती हूँ, आप लोग उसको करते जाइए. My younger brother noun हो गया ना, तो my younger brother पूरा subject हो गया. My younger brother is going, is a helping verb, going है main verb. Two preposition. Farheen, are you noting down? बेटा आप लिखते जा रहे हो? Okay. To है preposition. School noun है. In फिर preposition. A is an article. Very slow. Very हो गया adverb. Slow manner. Manner noun हो गया. Very slow. अच्छा, अब मुझे बताइए, I have written 1, 2, 3, 4, 5 words. What is the children instead of these 5 words? Can you recommend just one word substitution for him? गुलाम मोहिउद्दीन बताएं, इन 5 शब्दों की जगह एक लफ्ज अगर लिखें तो हम बड़ी आसानी हो जाएगी. My younger brother is going to school. You know क्या होता है? आपको तो शायद एक्सपीरियंस नहीं होगा फरहीन, लेकिन हम लोग भी पहले जाते थे. Very well done. This is what I wanted to tell. घर वाले ने धक्का दे के बाहर निकाला है, रोते रोता बच्चा, छोटा बहन भाई निकलता है, फिर पीछे देखता है कोई आ तो नहीं रहा, घर वाले वापस चले जाते हैं. Then he starts walking very slow, sluggishly. But Farheen beta, you got to be very careful about spelling. गुलाम मोहिउद्दीन sluggishly के जरा spellings लिखिएगा.
And Ghulam Muhyiddin, you are going to let me know the meaning. Already I have written sluggishly, lazily. ठीक है, गुलाम मुहिद्दीन स्पेलिंग करेक्ट करेंगे आप, जल्दी जल्दी टाइप किया करें आप लोग, टाइपिंग स्पीड तो अच्छी है, नॉट लाइक आप. Okay, sluggishly. So sluggishly is an adverb. Very good. This is what I want to tell you, that instead of using these 5 words, we can substitute just in 1 word. So sluggishly is an adverb. अब आप लोगों ने नोट कर लिया होगा कि हमने 2 सेंटेंसेस के इनको हमने मुख्तलिफ पार्ट्स में तोड़ा. So I am going to erase the board. अब मैं बेटा आपको बताती हूँ कि हमारा मकसद क्या है. First of all, we are going to start from the सेंटेंस. सेंटेंस होता क्या है हमको पहले ये पता चलना चाहिए, लेकिन इसके लिए पहले आपने मुझे बताना है कि व्हाट इज अ सब्जेक्ट. चलेंगे, कम ऑन लेट्स स्टार्ट. चिल्ड्रन, यू आर गोइंग टू लेट मी नो व्हाट डज सब्जेक्ट मीन. आपने मुझे पहले, हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है. सब्जेक्ट, ठीक है. उसके बाद हमने देखना है कि वर्ब क्या है, फिर हमने देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है. So we are going to focus on these 3 basic things first. I know you know the things, ठीक है, but concept should be 100% clear. Sayyid Abdul Rab, Assalamu alaikum. How are you, beta? Our class starts at exact 2 o'clock. You have to turn off your mic. आपने टाइप करके अब्दुल रब जवाब देना है. आप माइक ऑन करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी. Please type your answer. Sayyid Abdul Rab, come on, join us. Write on something, type something. अपने पोर्टल पे कुछ टाइप कीजिए. Sayyid Abdul Rab, can you listen me? Write on yes or no. Sayyid Abdul Rab, wait for a minute, children. Zahid. बेटा जाहिद किधर? Sayyid Abdul Rab, can you listen me? Can you listen? Okay. जी बेटा, from where are you, Sayyid Abdul Rab? Why were you so late? It's like half of the lecture is over already. So beta, class starts exactly at 2 o'clock. Okay? Try not to miss because earlier we start and then finish at 3. So please be very careful next time. Okay. Ji, Farheen, Ghulam Muhyiddin and Abdul Rab has joined us now. We were discussing about subject, verb and object. Ji, type your answers, children, please. Let me know what is subject. Exactly 3 of you. Farheen, Ghulam Muhyiddin and Sayyid Abdul Rab. Okay, thank you. Very good, boy. Abdul Rab, that you will be punctual. A performance for an action. God, Ghulam Muhyiddin, what do you say? Sayyid Abdul Rab. First of all, I am talking in English, and by the end of the lecture, I will try to repeat in Urdu so everyone could understand. Ji beta, I am going to dictate you. You have to write down on your register subject. For example, I tell you, subject is the one which makes course of action simple. I repeat, subject is the one who or which makes the course of action simple. Subject काम करने वाले को कहते हैं. फनीन ने ठीक लिखा, जो काम करता है, doer. इसको हमने सिर्फ इसको, my definitions are not 100% like your physics, chemistry, mathematics. ठीक है, my definitions are sometimes self-derived just in order to make your concepts clear. आपको मतलब समझ आना चाहिए. तो आपने जहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है वहां पर doer लिख लीजिए. जिन बच्चों ने उर्दू में लिखना है वो लिख लीजिए काम करने वाला. ठीक है. Then comes verb. Verb is an action. Repeat. Okay. Ghulam Muhyiddin लिखिए. Subject is the one who makes course of action. The one who makes course of action simple. यानी कि जो काम करना को आसान बनाता है. परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन, डूअर लिख लें.
उर्दू में लिख लीजिए काम करने वाला। अब बेटा लिखिए वर्ब। व्हाट इज वर्ब? वर्ब इज एन एक्शन। वर्ब क्या है? वो काम है। स्टेट और पहले हम सिर्फ समझते थे दिस इज लाइक एन एक्शन, लेकिन अब आपने ये समझना है कि दिस इज नॉट अबाउट एक्शन ओनली, दिस इज अबाउट एक्शन और स्टेट, हालत, किस हालत में है। ठीक है, इसको हम वर्ब बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे डूअर, काम करने वाला। ये काम करने वाला हो गया, ये काम हो गया। नाउ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है बेटा ऑन विच, प्लीज राइट डाउन इफ यू राइटिंग, ऑन विच एन एक्शन इज डन। ऑन विच एन एक्शन इज डन। उर्दू में लिखिए जिसके ऊपर काम होता है। अगर आज आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट समझ आ जाएगी ना, तो फिर अगली बातें समझ आएंगी। अगर ये यहाँ पे आप स्टक हो जाएंगे तो आगे नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम होता है। आई रिपीट, सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब काम, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम होता है। ऑन विच एन एक्शन इज डन। फ्रेंड, आर यू अंडरस्टैंडिंग बेटा? दीज आर वेरी बेसिक पॉइंट्स। नाउ फॉर एग्जांपल, if I throw a marker towards Ghulam Mohyuddin, right? I am throwing a marker towards Ghulam Mohyuddin. मैं गुलाम मोहिउद्दीन की तरफ मार्कर फेंक रही हूँ। तो मैं, I at the moment is subject, throwing is an action, मार्कर भी ऑब्जेक्ट हो सकता है और मोहिउद्दीन भी हो सकता है। अब ये हमने बाद में डिस्कस करना है, डिटेल्स में बाद में जाना है कि जी गुलाम मोहिउद्दीन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि मार्कर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के चक्कर में नहीं, अभी आपने सिर्फ ये देखना है। चले ऐसे करते हैं कि गुलाम मोहिउद्दीन ने एक मुक्का मारा है अब्दुल रब को। अभी लड़ाई नहीं शुरू करनी है हम, ठीक है? हम क्लास में इतनी दूर दूर बैठ के हमने मुक्के शुक्के नहीं मारने वैसे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर फन। अच्छा जी, गुलाम मोहिउद्दीन अब्दुल रब, आप सुन रहे हैं बात? गुलाम मोहिउद्दीन ने मुक्का मारा है अब्दुल रब को बड़ी दूर से। गुलाम मोहिउद्दीन सब्जेक्ट है, मुक्का मारना एक्शन है, वर्ब है, काम है, और अब्दुल रब क्या है? अब्दुल रब ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये अब्दुल रब को बड़ा गुस्सा चढ़ा, उन्होंने वापस मुक्का रख के मारा गुलाम मोहिउद्दीन को। तो क्या हुआ है गुलाम मोहिउद्दीन? अब्दुल रब सब्जेक्ट बन गए हैं, आप ऑब्जेक्ट बन जाओगे, और एक्शन मुक्का मारना वहीं का वहीं रहेगा। आई रिपीट वंस अगेन, जो काम करता है वो सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर काम होता है वो ऑब्जेक्ट है, और जो काम है वो एक्शन है, वो वर्ब है। इज इट क्लियर? These three things are clear? बताइए, तीनों समझ आ गई बातें ठीक है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। गुलाम मोहिउद्दीन एंड अब्दुल रब, आपसे भी मुझे रिस्पॉन्स देना है यस या नो में। नहीं समझ आएगी तो मैं दोबारा रिपीट करूंगी बेटा। गुलाम मोहिउद्दीन समझ आ गई तीनों चीजों की, अब्दुल रब आपको समझ आ गई? ओके फाइन, वेरी वेरी गुड। सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन अ सेंटेंस ऑन द बोर्ड। हमारा जो फंक्शनल इंग्लिश का काम है ना, दैट इज बिट डिफरेंट देन योर प्रीवियस स्टडीज। A marker fill down. You know we have got e-markers. These are different than your board markers. So what is our next task? That is like I'm going to write down a sentence again on the board. You're going to let me know what is subject and verb. She writes a letter. I will be trying to start off from the very simple basic concept. Ji beta. Now what you got to do, you have to break the sentence into different parts again. This one is first, and we are going to take it as a whole to the second one, and there is a punctuation mark by the end. So beta, we have to focus on each and everything. Now start breaking it. Now you have to tell me, three of you, आप लोग सेंटेंस सक्सेस जो जो मैं बोर्ड पे लिखती हूँ ना, साथ साथ बेशक पोर्टल पे भी लिखा आपको मिल जाए, लेकिन फिर भी आपने अपने रजिस्टर्स पे लिखना और साथ ही वर्किंग शुरू कर देनी है। अब देखिए बेटा, मैंने आप आई हैव रिटन अ सेंटेंस ऑन द बोर्ड। अब क्या करना है आपने मुझे बताना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। फौरी सोच लें आंसर।
गुड गुड, वेल डन। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। देखिए आई हैव रिटन अ फॉर्मूला ऑन द बोर्ड। आप तीनों मेरी बात गौर से सुन रहे? मैंने एक बोर्ड पे फॉर्मूला लिखा, इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं SVO and this is called subject verb agreement. Please write down subject verb agreement. I repeat, subject verb agreement. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? SVO. S stands for subject, verb for V and object. इसका मतलब ये है कि बेटा, can you see your portal clearly? आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हो? चलें. It means बेटा, if the subject is singular, if the subject is singular, the verb after this should be singular. I repeat, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, वाहिद है, तो उसके बाद वाला जो वर्ब आएगा वो भी वाहिद होगा। फॉर एग्जाम्पल इधर तो शी था ना, तो राइट के साथ आपको पता है फर्स्ट फॉर्म के साथ एस के ES आता है। अगर यहाँ पर बच्चे फॉर एग्जाम्पल दे होता तो फिर आप एस उड़ा देते और आप राइट लिखते है ना। तो ये है सब्जेक्ट वर्ब, फिर आप एस लिखते तो गलत हो जाता। तो दिस इज व्हाट वी कॉल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इधर प्लूरल है, ठीक है, दिस इज प्लूरल, तो प्लूरल के साथ खाली फर्स्ट फॉर्म। बस आप देन में सिर्फ मेन बेसिक बातें आपको आज बता रही हूँ कि SVO का मतलब है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर आप शी राइट लिखोगे, ये वाला एस उड़ा दोगे तो बेटा फिर भी आपकी इनकरेक्ट होगा आपका स्ट्रक्चर। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स आई वांट टू लेट यू नो। Is this subject SVO का मतलब सब बच्चों को पता चल गया? Shall I erase the board? Have you noted down? If the subject is singular, the following verb will be plural. Singular, बेटा सभी. If the subject is singular, the following verb will be singular. मैंने आपको लिखा ना subject verb agreement. अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। अच्छा मैं आपको बता ही देती हूँ, आप लोग परेशानी में ना रहो कि सिंगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं। सिंगुलर वर्ब्स होते हैं बेटा जब हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES ऐड कर देते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ये किया, तो ये सिंगुलर वर्ब कहलाएगा। फिर सिंगुलर वर्ब होगा इज, फिर सिंगुलर वर्ब होगा एम, फिर सिंगुलर वर्ब होगा वॉज, फिर होगा है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड सिंगुलर वर्ब। बहुत डिटेल में नहीं, अभी हमारे इंट्रोडक्टरी लेक्चर चलेंगे तो ऐसा हम और चीजों को क्लियर करते जाएंगे। तो ये किसके साथ आएगा? ही, शी, इट और एम सिंगुलर, और एम आई के साथ, जिसका मतलब है मैं, विच यू आर गोइंग टू राइट इन अब्दुल्ला डिस्कस किया था कि आप ओरिएंटेशन में नहीं आए थे। ये वाला आई कैपिटलाइज रहेगा, ये वाला जो है ये आपने कभी नहीं लिखना जो आप टेक्स्ट में लिखते हो, जिसका मतलब है मैं। ठीक है, ऐसे लिख रही है, हमारी ओल्ड इंग्लिश में इस तरह लिखते थे हम लोग। आपने स्मॉल नहीं लिखना किसी भी सूरत में, स्पेशली इन फंक्शनल इंग्लिश पेपर ये पंक्चुएशन मार्क्स की प्रॉब्लम आ जाती है। Shall I erase the board? Have you noted down everything from the board? बेटा your register should be ready for the final exam, ताकि आप बस पेजेस टर्न करो तो रिवीजन हो जाए। And English register shouldn't be mixed with other subjects. Remember, I am very curious regarding my subject. मुझे बड़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं, अपना सब्जेक्ट मिक्स ना हो, ना QM के साथ, ना आई एम रियली वेरी जेलस फ्रॉम QM एंड मैथमेटिक्स। बच्चे वही पढ़ते रहते हैं, अंग्रेजी को कम ही टाइम देते हैं, लेकिन दिस टाइम इंशाल्लाह माय चिल्ड्रन आर गोइंग टू गेट डिस्टिंक्शन इंशाल्लाह। तो रजिस्टर या तो आपके पास मोटा रजिस्टर है, आपने पूरी ऑनलाइन के लिए, तो बेटा ये पोर्शन एक बना लें। इंग्लिश का पोर्शन बिल्कुल अलग रखें। आज का लेक्चर है, कल का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा डेट के साथ बड़े सीक्वेंस में चलेंगे। What would be the reason? आपने पेपर तो लिख के करना नहीं, लेकिन शौकत जाए सच्चा, I don't want to use very harsh words for me, कि मैं आपको फोर्स करके लिखवाती हूँ। लिखने से ये होता है कि पोर्टल पे आपकी उंगलियां ज्यादा जल्दी से चलेंगी। There is a strong link between, you can research even बच्चे, you are
you belong to highly technological era, but there is a strong connection between fingertips and mind. If your mind forgets, your fingertips remind you. If your fingertips forget, your mind reminds you. देखिए नर्व चल रही है, मेरे दिमाग में बात आ रही है तो मैं उंगलियों से लिख रही हूँ ना, अगर मेरे दिमाग में बात नहीं होगी तो मैं कैसे उंगलियों से लिखूंगी? So in order to cover that part, I force you people to write, and hopefully you won't mind. So I need that I have told you separate English registers to functional English plus pens plus functional English book. ठीक है, 3-4 चीजें पहले अपने टेबल पे रख दिया करें। तो अभी जो मैंने कैपिटल आई लिखा है जिसका मतलब मैं होएगा, हाँ एक या दूसरी जगहों पे तो आप आई स्मॉल डालोगे, लेकिन आई जो मैं होगा वो ऑल द टाइम कैपिटल। तो ये किसका चल रहा था? हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आई रिपीट वंस अगेन, हमने शुरू किया एक सेंटेंस से, उससे हमने कुछ उससे तोड़ा फोड़ा, फिर एक हमने पंक्चुएशन मार्क पे बड़ा जोर दिया कि जी क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, गुलाम मोहिउद्दीन ने पूछा, फिर मैंने कहा कि नहीं जी अब फुल स्टॉप आना चाहिए, तो पंक्चुएशन मार्क ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट। अब देखिए बेटा, हैव यू नोटेड डाउन? शैल आई रीड? मैं एक और पॉइंट डिस्कस करना चाहती हूँ आप लोगों से। फहीम, अब्दुल रब, आपका भी आंसर नहीं आ रहा? सैयद अब्दुल रब, प्लीज आंसर यस और नो। गुलाम मोहिउद्दीन आपने नोट कर लिए? Even I put full stop, you got to note it down, each and everything from the board, ताकि क्लास खत्म हो आप खोले ना समझ आए और अगले दिन आप मुझसे फिर पूछ सकें। चल, I'm going to read it now. Maybe you can get it once again, but I want you to note down. पेपर में क्लिक करना होता है, पोर्टल पे पेपर है, आप लोगों ने कुछ नहीं लिखना, लेकिन मेरी क्लास में समझें कि यू आर इन केजी क्लास इनिशियली एंड राइट डाउन। जी बच्चों, I'm going to write down another sentence. You told me about subject. Then you told me about an object. अब एक और कहानी, एक और फॉर्मूला, and these formulas are going to help you out. बेटा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों ही they can either be a noun or a pronoun. I repeat. आप नोट कीजिएगा सेंटेंसेस में कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या तो ये एक नाउन होएगा या एक प्रोनाउन होगा। अब नाउन और प्रोनाउन क्या है ये भी मैं आपको ऐसा ऐसा समझाने शुरू करूंगी, बस अभी आप ये वाला फॉर्मूला जो है ना ये अपने जहन में पक्का कर लें कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कैन ईदर बी अ नाउन और कैन ईदर बी अ प्रोनाउन। ये फॉर्मूला बनता है हमारा, ठीक है। प्रोनाउन या नाउन जो है वो दोनों हो सकते हैं। कैसे? जैसे शी लिखा था तो प्रोनाउन था, मैं कहती हूँ अहमद लव हिम, अहमद हो जाएगा नाउन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और हिम हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो वो भी प्रोनाउन है। तो आपने अब फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैन ईदर बी अ नाउन और प्रोनाउन। मुझे बताएं इस बात की समझ आई है कि नहीं? मैंने आप सब्जेक्ट वर्ब से आगे नहीं बढ़ा, मैंने सिर्फ आपको यही पॉइंट आपका क्लियर करना है। बताएं बच्चों, तीनों आंसर दिया करें मुझे फौरी। सईद अब्दुल रब, आपको सही समझ आ रही चीजों की? जी ठीक है। अब आप बताइए गुलाम मोहिउद्दीन, ठीक है। फरहीन ऑलरेडी गॉट इट। आई रिपीट वंस अगेन, हमने दो फॉर्मूलाज किए हैं, एक ये है SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये कभी नहीं होता बेटा, हाँ ये भी ध्यान में बात कर लीजिए, SVO फॉर्मूला होता है, ठीक है। OSV इनकरेक्ट। आपको सीक्वेंस ये चाहिए यूली। When I say ULE, it means 97.5%, right? I mean 97.5%
माई इंग्लिश इज नॉट लाइक योर मच स्मार्टर केमिस्ट्री। चिल्ड्रन यहाँ पे मार्जिन 100% नहीं है, मैम ने कह दिया है, बुक में लिखा है, जो जी ऐसे ही होगा, नहीं। अब मैंने जो आपको एसपीओ का फॉर्मूला बताया, एक वक्त आएगा कि मैं कहूंगी बेटा ये VSO है, ठीक है, समटाइम्स आई कैन लेट यू नो, लेकिन आपने जेहन में एग्जैक्ट फॉर्मूला रखना है। इफ आई से यूजुअली इट मींस 97.5%, इट्स नॉट 100% लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की डेफिनेशन तो पक्की पक्की याद करनी होती है ना, लफज बलफज, इधर वैसा चक्कर नहीं है। तो लैंग्वेज में कोई चीजें इधर से एक वक्त मैं कहूंगी बेटा ये बात है, थोड़ी देर बाद मैं कहूंगी बेटा ये थोड़ी सी इससे डिफरेंट हो जाती है। तो कीप थिंग्स इन योर माइंड व्हेन आई यूज वर्ड यूजुअली। तो बेटा दो फॉर्मूला किए, एक ये है एसवीओ, दूसरा हमने किया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैन ईदर बी अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो आप लोग ये दो बातें ध्यान में रख लें कि काम करने वाला और जिस पे काम होता है या तो वो नाउन होता है या वो प्रोनाउन होता है। अस्सलाम वालेकुम रफाकत खान, Fareen and Ghulam Muhyiddin, but I'm so sorry because people are joining and I have to talk with them as well. So come on, be patient. Don't feel bored. Okay. Ji Rafaqat Khan, how are you? Abdurrab, you didn't tell me from where are you. आपने नहीं बताया अब्दुल्लाह, आपके जैसे रफाकत खान, you have to turn off your mic. रफाकत खान, शाबाश, good children. अब्दुल्लाह, from where are you बेटा? आप किधर से हैं, कौन सी जगह से हैं, और आपने क्या किया हुआ है एफए, एफएससी और ए लेवल? रफाकत खान, कैन यू हियर मी? प्लीज टाइप यस टू नो। रफाकत खान यस टू नो लिखिए। रफाकत खान, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। रफाकत खान, करंटली इन इस्लामाबाद, और वैसे कहां से हैं आप? ओके रफाकत खान, फ्रॉम वेयर आर यू? आप कहां से रफाकत खान? मेडिकल कॉलेज, ओके, यू लेफ्ट मेडिकल कॉलेज, ओके, नो प्रॉब्लम। शादरा टाउन से हैं, ये लाहौर से ही है। रफाकत खान, आपने क्या किया हुआ बेटा? And Rafaqat Khan, beta, class starts at 2 o'clock, BCom. So beta, you got to be very punctual and regular. You can ask for my regular students. I'm really a very harsh and hard teacher. शुरू में तो मैं आपके साथ बड़ा अच्छा चलूंगी, उसके बाद मैं आपको अपने मोबाइल से खींचूंगी, दूर से अब मैं कुछ कह तो नहीं सकूंगी, लेकिन I will try my level best. Class starts at 2 o'clock, children. Especially अब्दुल राफ एंड रफाकत खान, आपने बल्कि 1:30 बजे से या अपने सेटअप करना शुरू कर दें, अपनी जो भी चीजें चाहिए, को बुक चाहिए, रजिस्टर चाहिए, पेन, सब कुछ आपकी टेबल पे हो, आपके पोर्टल बिल्कुल रेडी हो, ठीक है। तो वेलकम रफाकत खान टू आवर फंक्शनल इंग्लिश क्लास। हमने बेटा आज कुछ ज्यादा नहीं किया, हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट किया है, इंट्रोडक्शन। तो मेरी क्लास में एब्सेंस होने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर आपके पास इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है, लाइट चली गई है, तो बेटा फिर यूपीएस से कहीं ऐसा कनेक्शन करना है कि इस तरह की प्रॉब्लम बिल्कुल ना आए। क्लास मिस नहीं होगी तो फिर आपको चीजें समझ आएंगी। आज मैंने इनको सिर्फ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का बताया, बहुत ज्यादा नहीं बातें समझाई, और ये बताया कि सब्जेक्ट काम करने वाला, ऑब्जेक्ट जिसपे काम होता है, ये या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। अब ये नाउन क्या चीज है और प्रोनाउन क्या चीज है, ये भी मैं नहीं बता रही, हम विद द पैसेज ऑफ टाइम वी विल कीप ऑन डूइंग। And I also wanted to instruct you people that what you have to do. Beta, do you have your books with you? Come on, type yes if you've got your books with you. पैक की बुक्स मिल गई हैं आपको? पैक की बुक्स मिल गई हैं? आई कैप बुक्स हैं विद यू? ठीक है। और फरीन, आपके पास, किसी के पास नहीं है? यू हैव गॉट बुक्स, पैक की मिली है आपको? नॉट आई कैप, पैक ही। फरीन, आपके पास भी पैक है? आई कैप की रफाकत खान आपके पास? तो जिन बच्चों के पास नहीं है ना पैक की बुक्स, बेटा आप मैम से, जो कोऑर्डिनेटर है, उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा, आपको पार्सल बहुत जल्दी मिल जाएगा पैक की बुक्स का। दोनों बुक्स एक ही है कि फॉर पैक नो इशू, लेकिन पैक की बुक में उन्होंने थोड़ी चीजें और सिंप्लीफाई की है, तो यूजुअली वी डू फ्रॉम द पैक बुक। लेकिन अगर नहीं है तो नो इशू, यू आर नॉट गोइंग टू बी वरीड,
just place in order, inshallah you will get quickly. Beta, I have got a list on the page number 161 from Pack book. I repeat, page number 161 from the Pack book. 161, and I have got old version of edition, old version का है, and I am an old person, so I love my old books and old things. I don't want to get new book. What you got to do, बेटा? आपको लिस्ट नजर आ गई है? I want to give you some work during holidays. हमने एक दिन भी अपना जाया नहीं करना, because we have got very calculated days. बेटा आपको नजर आ रहे होंगे synonyms. Synonyms are the words having same meaning. ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, समझ लिसन. मैं एक कहानी आपको सुनाती हूँ. बेटा, मोहम्मद अब्दुल्ला खान इज माय बेस्ट फ्रेंड. आई लाइक माय फ्रेंड वेरी मच. ही इज माय डियरेस्ट फ्रेंड. ही इज माय क्लोजेस्ट फ्रेंड. ही इज फ्रेंड इन नीड. ही इज फ्रेंड. What's the word I'm using again and again? Friend, friend. आप भी बोर हो गए कि मैडम को क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया इनकी उम्र में. You are getting bored now. I'm using friend, friend, friend again. So Ghulam Mohiuddin, what is if I say, Mr. Abdullah Khan is my best friend. He is my colleague. He is my pal. He is my intimate. He is a guide to me. So instead of using friend, friend, friend again, मैंने friend के synonyms बोलने शुरू कर दिए. Synonyms इसलिए बोलते हैं कि लोग एक लफ्ज बार बार सुन के बोर ना हो जाए. अच्छा, अगर मैं कहती हूँ कि this question is very difficult. This question is very difficult to solve. This question is so difficult that I cannot solve. This is difficult बार बार फिर आप बोर हो जाते हो. अब मैं कहती हूँ this question is very difficult. It's hard to solve. It's very complicated. अब मैंने difficult को replace कर दिया hard, complicated, unable to solve. तो ये इस तरह की जो synonym होता है one word substitute. एक लफ्ज की जगह कोई और लफ्ज लगाना. अच्छा, उर्दू में इसको अब्दुर्रब क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मुतरादिफ. अब आप लोगों के पास हैव यू ओपन योर बुक्स? आपकी बुक्स पे कौन सा नंबर होगा? जिनके पास साइंस की बुक्स में देखिए, मेरे पे बेटा पेज नंबर 161 है, आप पे 162 है. तो फिर ही बेटा एवरी टाइम आई स्पीक आउट नंबर यू कैन करेक्ट इट ऑटोमेटिकली. ठीक है, क्योंकि मेरा एक पीछे होगा या एक आगे होगा. तो आप आईकेएस, जिनके पास आईकेएस की बुक्स है वो भी खोल सकते हैं. सिनोनिम्स, ठीक है, वोकैबुलरी का पार्ट है. व्हाट यू गॉट टू डू नाउ, पहले हम ये वाली लिस्ट याद करेंगे. आईकेएस का पेज नंबर, दिस इज व्हाट यू कैन सर्च आउट लेटर ऑन. गुलाम मोहिउद्दीन, आई एम सो सॉरी आई डोंट हैव एट द मोमेंट. मैं आपको फिर बता दूंगी, लेकिन देख लीजिएगा कि ये चैप्टर है आईकेएस का भी यही बड़ा होगा. सेम बुक्स आर सेम. चैप्टर नंबर 5 वोकैबुलरी स्टार्ट होती है. गुलाम मोहिउद्दीन वोकैबुलरी स्टार्ट होती है जहां पे है वर्किंग वोकैबुलरी, फिक्सेस एंड फिक्सेस और सिनोनिम्स एंड टॉनिम्स. तो उसमें आपने करना क्या है, बाद में ढूंढ लेंगे, नो इशू. उसमें आपने सब बच्चों ने क्या करना है, लेटर ए अबंडन से शुरू होता है. अबंडन का सिनोनिम इन्होंने लिखा है लीव. फिर एक और अबंडन है जिसका मतलब है डेजर्ट. ठीक है, फिर है अबाउट. हम सबको पता है अबाउट मीन्स अबाउट, लेकिन अबाउट अप्रॉक्सीमेटली. अबाउट का मतलब ऑलमोस्ट, नियर. शाबाश. तो इस तरह से आप लोगों ने याद करना है. व्हाट डू आई प्रेफर, इफ यू पीपल हैव टाइम फॉर इंग्लिश फंक्शन इंग्लिश, सुबह के टाइम तक सब लोग फारिग होते हो. अगर नहीं है तो फिर भी कोशिश करें बेटा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला है ना अबाउट, इधर सिर्फ एक लफ्ज लिखा है अप्रॉक्सीमेटली. आप लोगों ने बड़े गौर से मेरी बात सुनी है. इफ यू वांट टू गेट डिस्टिंक्शन, तो अबाउट के साथ इन्होंने सिर्फ एक वर्ड सब्स्टिट्यूट दिया. अच्छा, आप बोल लियो कि तुम्हें क्या होगा, वो यार क्या है, ऐसे ही करते ना बच्चे. तो आप अगर ढूंढ लोगे इससे पहले, जी बेटा, दिस इज आईकेएस पेज नंबर 127, पीपल कैन ओपन. तो अब आपने अपनी डिक्शनरी खोली, गूगल से देख लें, फॉरेस्ट गूगल पे कर लें, जो भी करना है. तो आपने अबाउट के साथ लिखना है अप्रॉक्सीमेटली, ऑलमोस्ट, नियरली,
तो ये क्या हो जाएंगे, ये सिनोनिम्स हो जाएंगे। ट्राई टू फाइंड 5 मोर सिनोनिम्स। चलिए मैं ज्यादा काम मिलते हमारे टीचर तो 50-50 देते थे, अब आप बच्चों को कहेंगे तो आप भाग जाओगे, कोई एडमिन कहते हैं मैडम बड़ा काम कराती हैं। आप यूं कीजिएगा कि आप जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट 4 मोर। एक इधर है ना, 4 और ढूंढ लें। इट्स नॉट कंपल्सरी, जस्ट अ सजेशन इन ऑर्डर टू इंप्रूव योर वोकैबुलरी। वोकैबुलरी क्यों करते हैं, इन ऑर्डर टू, बेटा आई डोंट हैव एनी मेडिकल वॉन्ड, आई डोंट हैव एनी शॉर्टकट, ठीक है, ना ही मैं जल्दी जल्दी पढ़ा सकती हूँ, ना ही मैं शॉर्टकट दे सकती हूँ। Why? Because I am a slow person. Why? Because I want to make your concept 100% clear. तो हम जितनी ऐसा लेकिन रेगुलरली चलेंगे इंशाल्लाह थिंग्स विल बी कवर्ड। तो आप लोगों ने क्या करना है कि 4 कोड देख के रजिस्टर्स पे लिस्ट बना लें और इस तरह आपकी अपनी डिक्शनरी अपना फॉरेस्ट बन जाएगा। अच्छा आप भूल गए हैं, अबाउट का अप्रोक्सीमेटली भूल गए हैं, 4 याद किए हुए हैं बच्चे, 2 तो याद रहेंगे ना, 2 में से 1 भूल जाएगा, 1 तो रह जाएगा ना, ये मकसद है। एक का एक ही याद करेंगे तो भूल जाएगा, एक के 5-4 याद करेंगे तो उनमें से कोई एक तो दिमाग में रह जाएगा ना। और पेपर में ये कैसे आएगा, मैं बताती हूँ, ICAT के पेपर में वो कैसे कैसे आएगी। एक सेंटेंस लिखा होगा, जो अंडरलाइन होगा उसके नीचे डिफरेंट सिनोनिम्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये अबंडेंट है तो इसके नीचे लिखा होगा इनफ, A option, B option sufficient, C option blamed, D option behave। E option होगी A and B both, तो आप लिख दोगे A and B both, E option को टिक कर दो। दूसरा क्या तरीका होगा, दूसरा लिखा होगा एक्सटेंड, दूसरा लिखा होगा एक सेंटेंस के अंदर, ब्लैंक होगा, उसके नीचे फिर 4 उलट पुलट आगे पीछे वर्ड लिखे होंगे। आपने उस पे एक पे टिक करना, लिखना कुछ नहीं अपने हाथों, सिर्फ आकर फन। इंग्लिश के पेपर में आपने अपने हाथों पे कुछ भी नहीं लिखना, आपने फोटो पे पेपर देना है, इसी पे नेट पे देना है लैपटॉप पे, और टिक टिक करते जाना है, ठीक है। राइट ऑप्शन को 4 ऑप्शन होती है और समटाइम्स 5 जब वो कर देते हैं तो B and C और A और D दोनों, उस सूरत में तो लिखना कुछ नहीं है। लेकिन मेरा बच्चा, मेरी क्लास में आपको फुल टाइम रजिस्टर्स पे लिखना होगा। तो मैं जब हमारा ग्रुप बन गया, बल्कि तो मैं नोट से मंगवाती भी होती है, कमेंट शो में रजिस्टर्स आप लोगों से पिक्चर्स लेके तो बच्चों की देखती हूँ। अब इसको मैं कैसे सुनूंगी, अच्छा अब आपने करना, इसके ऊपर लिखिए जहाँ पे सिनोनिम्स लिखा है लेटर A, यहाँ पर आज की डेट लिखिए 18 सितंबर 2018, लिखिए सब बच्चों ने डेट। ICAT की बुक का पेज नंबर 127 है और पैट की बुक का 162 है।
सब बच्चों ने लिख ली है डेट आज की ए के ऊपर? You just have got 4 days week, ठीक है। फरीन, अब आपने क्या करना है, लेटर ए से लेकर, बहुत ज्यादा नहीं दूंगी, लास्ट वर्ड ऑफ लेटर बी इज बाय, आगे देखिए परचेज लिखा होगा जी, बुक पे ही, ये काम बुक पे करना है। हमारी बुक हमें बताएंगे कि हमने कितनी वर्किंग की है, बुक पे करना है। हाँ, जो सिनोनिम्स लिखते हैं अगर तो बुक पे आप चुनी मिली लिख सकते हो, इसके सामने काफी जगह बुक पे भी, तो ठीक है, नहीं तो रजिस्टर्स पे लिख लीजिएगा, ठीक है गुलाम मुहिउद्दीन, सारे वक्त में बैठ के तो आपने बुक रजिस्टर पे लिख लीजिएगा। रजिस्टर पे लिखिएगा बॉर्डर, देखिए आप बॉर्डर है, इसके मैं सिनोनिम्स आपको बताती हूँ, आप मकसद देखें सिनोनिम्स का क्या है, और अगर लिसनिंग मेरी केयरफुली। अच्छा जी, मैंने बोला है, मैंने एक वर्ड दिया बॉर्डर, इसकी डिफरेंट कैटेगराइज यू कैन, ठीक है, कैसे? माई यंगर ब्रदर बॉदर्स मी, बार बार आके दरवाजा खटका जाता है। माई यंगर ब्रदर इरिटेट्स मी, उसमें क्या है, इरिटेट कैसे करता है, आइसक्रीम खा रहा है, इरिटेट आ रहा है, ये होगी इरिटेशन, बॉदर इरिटेट, ठीक है। माई यंगर ब्रदर टॉर्चर्स मी, आता जाता क्या करता है, फरीन अगर आपके भाई बड़े छोटे क्या करते हैं, चुटिया खेल जाते हैं, तो वो टॉर्चर में आ गया। अब बॉदर, इरिटेट, टॉर्चर, इनकी डिग्री फर्क होगी। अब आपने कौन सा सिनोनिम यूज करना है, विच सूट्स योर सेंटेंस द बेस्ट, तो उसकी सेंस क्या है, बच्चे कहते हैं मैम सेंस कैसे पता चलेगी, जब हम बार बार करते हैं तो हमें सेंस पता चल जाएगी। तो मेरे बच्चों, आपने सिर्फ लेटर ए और बी करें, बाय परचेज के आगे राइट ऑन टुडेज डेट एक निशान लगा लें, यानी कि आपने ए और बी 18 सितंबर का आपको होमवर्क मिला है। स्मॉल लिटिल चिल्ड्रन, आप जितने मर्जी बड़े बड़े हों, मुझे नहीं पता, मेरे लिए आप बच्चे हैं। सब बच्चों ने मार्क कर लिए, ए और बी आपने याद करने, कम से कम ये बुक वाले जो अच्छे बच्चे हैं वो कोशिश करेंगे कि हर वर्ड के 4-4 और ढूंढ लें और वो याद करें। बस आज का इतना से काम है, अभी तो मैं आपके साथ बड़े प्यार से चलूंगी, उसके बाद ये मैं सुनूंगी कैसे, मैं बोलूंगी और आप लोग मुझे टाइप करके देंगे सारे जल्दी से, और फिर उसके बाद क्या होगा, इसका टेस्ट होगा, आपको टेस्ट दे दिया जाएगा, वो आप सॉल्व करेंगे, वो चेक होके उसी वक्त नंबर आ जाएंगे, नहीं होगा तो फिर खिंचाई और सेंटेंस तैयार होगी। क्लियर? किसी को कोई बात नहीं समझ आई तो पूछ लें। कोई बात नहीं समझ आई आज के लेक्चर में तो पूछे। एक मैंने आपको काम और देना है कि आप लोगों ने बाय टुमारो, नो बेटा टुमारो वी आर नॉट गोइंग टू हैव अ क्लास, आई थिंक बाय मंडे, बड़ा थोड़ा सा काम दिया आपको, तो मैं स्टार्ट हो गया, ठीक है। और बच्चे, सब बच्चों ने, चारों बच्चों ने काम ये करना है कि आपका जो हॉकर है ना बालों वाला, कल तक नहीं करना बच्चे, मंडे तक करना है। गुलाम मुहिउद्दीन, आगे तो छुट्टियां आ रही है ना, मेरा ख्याल है आप कोऑर्डिनेटर मैम से पूछ लीजिएगा, कोऑर्डिनेटर से, अगर कल छुट्टी नहीं होगी तो फिर सिर्फ लेटर ए करना है, अगर छुट्टियां हैं तो फिर बी कर सकते। अच्छा, अब आप लोग चारों बच्चों ने क्या करना है, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू कि यू हैव टू गेट न्यूज़पेपर, यू बेटर प्रेफर पब्लिश्ड। रोजाना अंग्रेजी का अखबार लगवाने की जरूरत नहीं है, ना पढ़ा जाता पूरे का पूरा, आप सिर्फ एक संडे का ले लें, एनी इंग्लिश न्यूज़पेपर, डॉन ले लें, दैट इज द बेस्ट, न्यूज है, फ्रंटियर पोस्ट है, जो भी आपको अवेलेबल हो, एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर हफ्ते के हफ्ते ऑफिस से कि आपके घर भेजे, तो वो अपने साइड टेबल पे रखना है, और जब भी फारिग हो तो उसकी रीडिंग करनी है। दिस इज हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर वोकेबलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, ठीक है। बस आपने मेरे साथ ये करना है कि जो जो मैं आपको बताई जाऊँ, you people are going to follow the instructions. This is all for today. I just have not told anything very important. The most important thing is I want regular and punctual students. ऑफलाइन नहीं होना, एक सेकंड के लिए सिस्टम सेट रखने, रजिस्टर पास रखने, और एब्सेंट नहीं होना। दूसरी बात ये कि आप लोगों ने किसी भी सूरत में अपने नेट को ऑफ नहीं होने देने, सिस्टम सेट रखते हैं, ये मैंने पहले कह दिया, मोबाइल बिल्कुल ऑफ हो, एंड ऑनेस्टली यू आर गोइंग टू फॉलो माय इंस्ट्रक्शन। जो बात समझ नहीं आएगी, डू मेंशन, आस्क अगेन एंड अगेन,
हाँ जब टेस्ट हो फिर नहीं कहना कि ओ मैम मुझे तो याद नहीं, ओ मैंने तो लेटर ए के किए थे, बी के नहीं किए थे, देन आई वोंट डेयर। ठीक है। और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर ओनली फॉर संडे, वो काफी मोटी सारी फाइल होती है, वो पूरा हफ्ता आराम आराम से पढ़ते रहो, फिर मैं बताऊंगी कि आगे उसमें वर्किंग क्या करनी है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। इफ देयर इज अ क्वेश्चन यू कैन आस्क। कोई इश्यू, कोई क्वेश्चन? जी बताइए गुलाम मोहिउद्दीन। मेरा नंबर नोट कर लें आप लोग, 0 व्हाट्सएप है। मैं ग्रुप, आप लोग मुझे बस एक मिस कॉल दे के एक मैसेज करके अपने साथ अपना नाम बोल दीजिएगा, लिख दीजिएगा, तब नंबर लिख दीजिएगा, तो फिर मैं कर दूंगी। यहाँ पे बस लिखूँ, मैं लिख देती हूँ 0334251, सॉरी मुझे अपना नंबर भी नहीं आ रहा। 03324153199। I repeat 03324153199। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक ठीक है जी, आप कर सकते हैं गुलाम मोहिउद्दीन, लेकिन बेटा फिर नाराज नहीं होना, बिकॉज द मोमेंट आई एंटर इन माय होम आई एम लॉस्ट। किसी को भूख लगी होती है, किसी को कोई और मसला हुआ होता है, तो इफ आई गेट लेट तो आपने परेशान नहीं होना। आई एम गोइंग टू क्रिएट अ ग्रुप, आपका एक ऑफिशियली तो हमारा है, लेकिन हम सिर्फ फंक्शनल इंग्लिश का ही क्रिएट कर लेंगे। आप लोग अपने अपने नंबर मुझे भेजते जाइएगा, देन आई विल मेक अ ग्रुप। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? फरीम शम्स, रफाकत खान एंड सैयद अब्दुल्ला। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई सैयद अब्दुल्ला और रफाकत खान तो मैं चीजें दोबारा बताऊंगी, लेकिन एक दो दफा से ज्यादा नहीं, अगर आप इससे लेट होते रहे तो। आई हैव रिटन, यू कैन चेक इट आउट रफाकत, मैंने पोर्टल पे नंबर डालकर चेक कर लो। आप देख रहे होगे जहाँ पे चैटिंग है वहां पे मेरा नंबर आ रहा है 03324153199। ठीक है, अल्लाह हाफिज बेटा फॉर टुडे, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सैयद अब्दुल्ला आपने क्यों लिखा नो मैम, क्लियर नहीं है? चलिए मैं बोलती हूँ 03324153199। ओके, अल्लाह हाफिज बच्चों।